You have to note it down some general instructions and you have to follow all these instructions. Do your homework regularly means on the regular basis you have to do your homework. Send the assignments on time for marks. Do your assignments in a neat and clean handwriting. Watch your videos before doing the solutions. Got it? If you are doing your solution, so first of all you have to watch the video. Then after that you have to do the solution. Follow your NCERT book. You have to follow only your NCERT book. Write down your name, class, section, subject and assignment number in subject while mailing. Whenever you are mailing your homework ना, then you have to write your name, class, section. Sometimes आप लोग नहीं mention करते हो. If you will not mention, I will not accept your homework. Got it? And mail your assignments on vppseniors@gmail.com. Only this ID you have to mail your assignments. Whatever homework or assignments we are giving you na, only you have to mail on vppseniors@gmail.com. How are you? I hope you all are fine and safe at your place. Myself Meenakshi Sharma again welcomes you on the online classes of Vidya Bal Bhavan Senior Secondary School. Beta, in my last video, that is video session 39, what you did? I have completed the basic concept of chapter 15, probability. Got it? In this, you have studied about the concept of coin, the concept of dice, and how to describe the probability. Got it? So in this video session 40, I would like to discuss exercise 15.1. So here we look. Question number 1 is, in a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. इसका मतलब total number of balls are 30. 30 balls में से उसने 6 times क्या करी है? Hit करी है boundary. Find the probability. You have to compute the probability that she didn't hit a boundary. कि उसने boundary को hit नहीं किया. उसकी probability you have to find out. Got it? So what will you do? The solution is total number of balls is equal to 30. Total number of balls कितनी है? 30. She hits a boundary. वो कितनी बार उसने बाउंड्री को हिट किया? She hits a boundary 6 times. मतलब 30 में से 6 टाइम्स उसने बाउंड्री को हिट किया. तो कितनी बार वो बाउंड्री को हिट नहीं करेगी? She didn't hit a boundary. She didn't hit a boundary. 30 में से 6 माइनस कर दोगे तो then you get 24. That 24 टाइम्स उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया होगा. इसका मतलब क्या बेटा? I'm summarizing this question. क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ 30 बॉल्स एक बैट्समैन ने 6 बार हिट किया बाउंड्री. ठीक है, तो इसका मतलब 30 बॉल्स में उसने 6 टाइम्स बाउंड्री को हिट किया. तो हाउ मेनी टाइम्स शी डिडंट हिट अ बाउंड्री? तो कितने टाइम्स उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया होगा? 30 में से 6 माइनस कर दो, यू गेट 24. सो 24 टाइम्स शी डिडंट हिट अ बाउंड्री. उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया. तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट she did not hit a boundary. She didn't hit a boundary. Probability, और जिसकी probability निकाली है उसको ब्रैकेट में मेंशन करती है. ठीक है, is equal to what? Number of favorable outcomes divided by total outcomes. This is the formula of calculating probability, total number of outcomes. अच्छा, अब आप यहाँ बोलोगे मैम आपने तो यहाँ इवेंट डिस्क्राइब ही नहीं किया. तो बेटा व्हाट इज दिस? शी डिडंट हिट अ बाउंड्री. शी इज द इवेंट. मैंने वहां पे इवेंट को ई से डिस्क्राइब ना करके पूरी लाइन लिख दी है. गॉट इट? यू कैन राइट लाइक दिस, लेट ई बी द इवेंट दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री. आप ऐसे भी लिख सकते थे. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी शी डिड not hit a boundary is equal to number of favorable outcomes. किसकी प्रोबेबिलिटी
निकालनी है कि इसने बाउंड्री को हिट नहीं किया, तो वो कितने टाइम्स है 24 टाइम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 30, तो 24/30 6 4 6 5 तो 4/5 is the probability that a bat's movement didn't hit a boundary. I hope you understood this question. Question number 2. 1500 families with 2 children were selected randomly. कहते 1500 families में से with 2 children, मतलब ऐसे 1500 families ली गई है जिसमें 2 बच्चे हैं, ठीक है. were selected randomly. randomly means suddenly, और you can say अचानक से, ठीक है. and the following data are recorded. और क्या डाटा रिकॉर्ड किया? number of girls in the family. and 2 girls, जिस घर में 2 लड़कियां हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज है? 475. जहां पे सिर्फ एक ही लड़की है, ऐसी कितनी फैमिलीज है? 814. एंड ऐसी कितनी फैमिलीज है जहां पे एक भी लड़की नहीं है? तो ऐसे 214 फैमिलीज हैं. देयर वर नो गर्ल चाइल्ड, जहां पे कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं थी. गॉट इट? सो यू हैव टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल एंड नो गर्ल. आपने उन फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फैमिली की. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फैमिली की जहां पे 2 गर्ल्स हैं, 1 गर्ल है और नो गर्ल है. तो हाउ विल यू डू? हैव अ लुक सॉल्यूशन. और इसके बाद क्वेश्चन ये भी है, ऑल्सो कंप्यूट द सम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. इसके बाद आपको ये भी शो करना है. गॉट इट? सो सॉल्यूशन, टोटल फैमिलीज, आपको जब भी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हो तो आपको टोटल आउटकम्स चाहिए ना. तो टोटल फैमिलीज कितनी है? टोटल फैमिलीज 1500. लेट, अब देखो यहाँ पे 3 अलग अलग निकालनी है, 2 गर्ल्स की, 1 गर्ल की, नो गर्ल की. तो मैंने आपको प्रीवियस बेसिक वीडियो में बताया था कि आप E1, E2 एंड E3 से डिस्क्राइब कर सकते हो. गॉट इट? इन प्लेस ऑफ ओनली E, you can write E1, E2 and E3. Why I am writing E1, E2 and E3? Because 3 events are there. That's why. Got it? अगर सिंगल एक इवेंट है तो you can write only E event. ठीक है? Let E1 be the event. Let E1 be the event of family. देखो कैसे डिस्क्राइब करते हैं. जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहे हैं ना, वहां से प्रोबेबिलिटी को हटा दो और इवेंट डिस्क्राइब करो. लेट E1 बी द इवेंट ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स. तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जहां सिर्फ 2 लड़कियां हैं? 475. तो ये कौन से आउटकम्स हो गए? फेवरेबल आउटकम्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1's number of favorable outcomes divided by total outcomes. But I am writing the formula only one time. Total number of outcomes. अब देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 475. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1500. तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया. इन द सेम वे, let E2 be the event that family having 1 girl. तो ऐसी कितनी फैमिली है जहां पे सिर्फ एक ही लड़की है? 814. So these are the favorable outcomes. 814 ऐसी फैमिली है जिसमें 1 गर्ल है और आपने उसको इवेंट E2 डिस्क्राइब किया. गॉट इट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला बिकॉज एक टाइम बहुत है. ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 814 दिस डिवाइडेड बाय टोटल इज 1500. ठीक है? तो मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? हैविंग 1 गर्ल की. तो ऐसी 814 फैमिलीज हैं जहां पे सिर्फ एक गर्ल है एंड डिवाइडेड बाय टोटल इज योर 1500. इन द सेम वे, लेट E3 be the event that family having no girl, कोई भी लड़की नहीं है. तो ऐसी कितनी
खाली है जहाँ पे कोई भी गर्ल नहीं है, 214। इसका मतलब यहाँ पे कोई गर्ल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बॉय होगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के कैसे आएगा, ये 3 चीज आपको देंगे, उसके बाद बोलेंगे कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी हैविंग बॉय। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ कोई लड़की नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ लड़का होगा ना। ठीक है, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 214 divided by 1500. So these are the probabilities of first, second and third part. You can see, and after this you have to check whether the sum of these probability whatever you have find out, इनका sum 1 के equal आता है कि नहीं आता, because in my video session 39 in basic concept what I said to you कि जो सम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। अब आप इस सबको सम करो और देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नाउ प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। बेटा एग्जाम में ना एज इट इज छोड़ते ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। आई मीन टू से दिस इज ऑलरेडी इन फ्रैक्शन, इसको कैंसिल आउट रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। सो देखो प्रोबेबिलिटी इज वन व्हाट, 475 upon 1500 plus E2 814 divided by 1500 plus E3 214 divided by 1500. Beta, you can see that in the denominator everywhere 1500 is there, so you can take easily the LCM of 1500. So 1500, अब देखो 475 plus 814 plus 214. Wait, let me check. I have written something wrong, I think. 814 and this is better 211. 211. This is 211. ठीक है, तो in place of 214 211, तो जब आप इसका सम करोगे तो you get 1500 divided by 1500 and 1500 से 1500 कैंसिल हो गया, दिस विल बी 1। आप यहाँ देख रहे हैं 211 है। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करोगे इन दैट केस यू विल गेट 1500, so 1500 divided by 1500 is 1। I hope you understood this question. Here you checked that the sum of total probability is 1. Hope you understood. Exercise 15.1 question number 3 is homework. ठीक है, you have to refer the example 5 section 14.4 of chapter 14. So you have given the table. On the basis of this table you have to find the probability that a student of the class was born in August. तो आपने बताने कि अगस्त मंथ में कितने बच्चे बॉर्न हुए हैं। ठीक है, आई मीन टू से कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए हैं, तो आप टोटल आउटकम्स निकाल लेना और अगस्त मंथ का वो उसमें से ग्राफ में से देख लेना। ठीक है, बार ग्राफ में से यू कैन फाइंड आउट। सो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कोई क्वेरी होगी इस पे क्वेश्चन नंबर 3 पे, आई विल सॉर्ट योर प्रॉब्लम। गॉट इट? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 3 coins are tossed 200 times। तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स are 200. 3 coins are tossed 200 times with the following frequencies of different outcomes। कहते हैं एक कॉइन को ना, सॉरी 3 coins को ना हमने 200 बार टॉस करा है। ठीक है, 3 coins को 200 बार टॉस किया, तो आउटकम्स तो 3 heads कितनी बार आए? 23 टाइम्स। 2 heads कितनी बार आए? 72 टाइम्स। 1 head कितनी बार आए? 77 टाइम। और नो हेड मतलब कोई भी हेड नहीं है। जब कोई भी हेड नहीं है इसका मतलब वहां टेल आई होगी, तो वो कितने? 28 टाइम्स। तो आपने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी? यू हैव टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads। तो 2 heads की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 72। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? लेट E be the event of getting 2 heads। E किसका इवेंट है? 2 heads आने का। और 2 heads की फ्रीक्वेंसी कितनी है? कितनी बार 2 heads आ रहा है? 72 टाइम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E फॉर्मूला क्या होता है?
गॉट इट। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स कितनी बार है 72 एंड डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 200। तो 72 by 200, if you want to cancel out, if you want to reduce, you can, otherwise leave it as it is, ठीक है। So this is the probability of getting two heads. In the same way एग्जाम में ये भी आ सकता था, compute the probability of one head. So your answer would be 77 by 200. If the probability is no head की है 28 by 200. Probability 3 heads की निकाल सकते हो in the same way 23 by 200. So अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंप्यूट करनी थी प्रोबेबिलिटी 2 heads की. So this is the probability of getting 2 heads. I hope you understood. Come to question number 5 of exercise 15.1. You can read the question from the book because only I have given the data. ठीक है, nothing is written on the board, so you can take the help from the book. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between the income level and the number of vehicles in a family. कहते हैं ऐसे एक सर्वे किया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने, कितनी फैमिलीज का 2400 फैमिलीज का, और सर्वे किसके बेसिस पे हुआ है, इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली, कि उनकी इनकम लेवल क्या है और उनके घर में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, जिनकी मंथली इनकम, देखो नंबर ऑफ व्हीकल्स, या तो एक भी व्हीकल नहीं है, या एक व्हीकल है, 2 है, या 2 से ज्यादा व्हीकल्स है। ठीक है, जिनकी इनकम 7000 से कम है, द फैमिलीज हुज मंथली इनकम इज लेस देन 7000, ऐसी 10 फैमिलीज हैं जिनमें जिस घर में एक भी व्हीकल नहीं है। ठीक है, इन द सेम वे जिनकी इनकम लेस देन 7000 है, ऐसी 160 फैमिलीज हैं जिनके घर में सिर्फ 1 व्हीकल है। In the same way, the families whose monthly income is less than 7000, ऐसी 25 families हैं जिनके घर में सिर्फ 2 vehicles हैं, और the families whose monthly income is less than 7000, ऐसी एक भी family नहीं है जिसके घर में 2 से ज्यादा vehicle है। ठीक है, so in the same way you can proceed the further, कोई भी randomly ले लो। 13000 से 16000 जिनकी मंथली सैलरी 13 से 16000 है, ऐसी 2 फैमिलीज हैं जिनके घर में एक भी व्हीकल नहीं है। 469 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर में 1 व्हीकल है। 59 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में 2 व्हीकल्स हैं, और 25 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी मंथली इनकम 13000 से 16000 है और उनके घर में 2 से ज्यादा व्हीकल्स हैं। गॉट इट? So in the same way you can proceed further. So what you have to compute? You have to compute the probability that the family chosen is random, whose earning is rupees 10,000 to 13,000. ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 रुपए पर मंथ है, और उनके घर में ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है? 29। गॉट इट बेटा? सो राइट डाउन टोटल फैमिलीज 2400 बाय 2400, क्योंकि जो सर्वे हुआ है वो 2400 फैमिलीज का हुआ है। गॉट इट? सो अब आप क्या करोगे, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए? प्रोबेबिलिटी अर्निंग रुपीज, बेटा यू कैन कंप्यूट E1, E2 एंड E3 ऑल्सो। आप ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000, गॉट इट? पर मंथ, P dot N means per month, and owing exactly 2 vehicles, जिसके घर में 2 vehicles है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है? 29। तो 29 अपॉन व्हाट? टोटल, बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी। मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रही हूँ, इसलिए मेरे को टोटल भी लिखना पड़ेगा। गॉट इट? सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली द सेकेंड पार्ट, अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। कहते हैं जिसकी 16,000 उससे ज्यादा है और उसके घर में ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल है। तो 1 व्हीकल ऐसी कितनी फैमिलीज है? 579। सो प्रोबेबिलिटी अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर
ऐसे कितनी फैमिलीज है बेटा? 579 डिवाइडेड बाय 2400. Got it? In the same way, third party is earning less than 7,000. Third is probability earning less than 7,000 and does not own any vehicle and does not own any vehicle. एक भी vehicle नहीं है और सैलरी कितनी है? 7,000 से कम. तो देखो लेस देन 7,000 और एक भी vehicle नहीं है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 10. तो आंसर क्या आएगा? 10 by 2400. Fourth part is earning rupees 13 to 16. In the fourth part, probability earning rupees 13,000 to 16,000 and owing more than 2 vehicles and owing more than 2 vehicles. ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनकी 13,000 से 16,000 तक है और 2 से ज्यादा व्हीकल्स है? तो ऐसी 25 फैमिलीज है बेटा. सो आंसर इज 25 by 2400. गॉट इट? ठीक है. लास्ट पॉइंट इज फिफ्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी owing not more than 1 vehicle, owing not more than 1 vehicle, कि एक भी व्हीकल नहीं है. ऐसे कितनी फैमिलीज हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक भी नहीं है. नॉट मोर देन 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसका मतलब 1 और 0 हो सकते हैं. मतलब ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ 0 व्हीकल है और 1 व्हीकल है, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? नॉट मोर देन 1. 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 1 से ज्यादा नहीं है इसका मतलब 0 व्हीकल भी हो सकती है. 0 व्हीकल का मतलब कोई भी व्हीकल नहीं है घर में, और 1 व्हीकल का मतलब 1 व्हीकल हो, क्योंकि आपने नॉट मोर देन 1 से ज्यादा की नहीं निकालनी है. तो आप क्या करोगे? ऑल दिस थिंग, दिस वन प्लस दिस वन, आपको इन सबको क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो 10 + 1 + 2 + 1, देखो 10 + 1 + 2 + 1, इन सबको ऐड कर दो, प्लस 160 + 305 + 535 + 469 + 579 डिवाइडेड बाय 2400. आपने इसका क्यों डिवाइड किया है 2400 से? क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम ने ये सब क्यों ऐड किया है? बिकॉज बेटा यू हैव टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी owing not more than 1 vehicle. 1 vehicle से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब आपके माइंड में आएगा कि मैम ने ये सब ऐड क्यों किया है? Why ma'am has added all these things? बेटा क्वेश्चन था कि you have to compute the probability owing not more than 1 vehicle. ऐसी उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली उन फैमिलीज की जिसमें एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है. अगर एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है इसका मतलब आप 0 व्हीकल ले सकते हो और 1 व्हीकल ले सकते हो, और यहाँ कुछ इनकम लेवल तो दिया नहीं हुआ आपको. तो आपने ये सबको क्या करना है इस केस में? ऐड करना है. क्यों ऐड करना है? बिकॉज इनकम लेवल इज नॉट गिवन टू यू. तो ऐसी कौन सी कितने, कोई भी व्हीकल नहीं है तो ये सारे हैं, 1 व्हीकल है तो ये सारे हैं. तो इन सब की प्रोबेबिलिटी, इन सब का एडिशन करना है आपको. सो आफ्टर एडिंग इट बिकम्स 2062 divided by 2400. If you want to reduce, you can reduce, otherwise leave it. So this completes your question number 5 of exercise 15.1. अब आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैम ने यहाँ पे इवेंट क्यों डिस्क्राइब नहीं किया. तो आप ऐसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को. एक और भी तरीका था, लिखते टोटल फैमिलीज 2400, फिर लिखते लेट ई बी द इवेंट अर्निंग ₹10,000 to 13,000 per month and owing exactly 2 vehicles. तो उसके बाद आप क्या लिखते 29. Then in the next step, probability of E1, write down the formula, number of favorable outcomes divided by total outcomes, and after that probability of E1 is 29 by 2400. This is also the another way to do this question. Got it? E1, E2, E3 नहीं तो exactly ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं.
I hope you understood this question. 16 of exercise 15.1 is again based on chapter 15 और chapter 14. तो वहां पे आप ग्राफ की हेल्प से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आप निकाल लेना. आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 एंड इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम. ठीक है, वो भी आपको चैप्टर 14 को प्रेफर करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, दिस इज एक्टिविटी, नो नीड टू डू. 12 and 13 again no need to do, only you have to do these two question number 7 and question number 11. After this I will discuss some extra questions based on probability. ठीक है, तो उसी में से एग्जाम्स में आपका आएगा. अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following manner. Got it? कहते हैं सर्वे किया गया, 200 बच्चों का सर्वे किया गया. किसका? स्टैटिस्टिक्स का. तो उस सर्वे में क्या हुआ कि ऐसे कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको स्टैट्स पसंद है, स्टैटिस्टिक्स पसंद है. तो ऐसे 135 स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टैट्स पसंद है और 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्टैट्स नहीं पसंद. तो आपने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? टोटल स्टूडेंट्स 200. प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? लाइक स्टैटिस्टिक्स की. लेट ई बी द इवेंट दैट स्टूडेंट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स. कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्टैट्स को पसंद करते हैं? 135. आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. अब देखो यहाँ पे दो चीज है, तो E1 और E2 से डिस्क्राइब कर देना. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 135 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 200. एंड सेकेंड क्या? दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड इन सेकेंड पार्ट लेट E2 be the event. Let E2 be the event that students didn't like, कि वो पसंद नहीं करते, did not like statistics. तो कितने बच्चे हैं? 65. So probability of E2 is 65 by 200. I hope you understood this question. Question number 7. This is very simple. You have given the total number of students and also you have given 135 students are there who like statistics and 65 students are there who didn't like statistics. In that case you have to compute the probability of like statistics and dislike statistics. तो आपने निकाल ली. I hope you understood this question. Now come to question number 11. 11 bags of wheat flour each marked 5 kg. कहते हैं टोटल बैग्स कितने? 11 बैग्स हैं और उसपे कितना मार्क है? 5 kg का. एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट ऑफ फ्लोर इन kg. अब देखो, किसी बैग में 4.97 है, किसी बैग में 5.05 kg है, किसी में 5.08 है. तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इन बैग्स में से बैग चूज किए गए एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर. ऐसे बैग्स की प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें 5 किलो से ज्यादा आटा है. तो टोटल बैग्स कितने हैं? 11. तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी. प्रोबेबिलिटी बैग contains more than 5 kg. More than 5 kg of फ्लोर. तो ऐसे कितने बैग्स हैं जिसमें 5 किलो से ज्यादा फ्लोर है? देखो ध्यान से, 5.05 एक, 5.02, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04, 5.07. तो how many bags are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 bags are there. तो आंसर इज 7 by total is 11. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेट E be the event that bag contains more than 5 kg of flour which is equal to 7, then probability of E1 is number of favorable outcomes divided by total outcomes, then in that case you can write 7 by 11. तो ये भी तरीका है करने का, ये भी तरीका है. देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था,
E1 और E2 निकाला है ना, यहाँ E1 ना लिख के देखो, ये E1 जो डिस्क्राइब किया था वो मैंने अलग से कर दिया। तो बोथ आर द सेम मेथड, यू कैन डू फ्रॉम एनी मेथड, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, दोनों सही है। सेकेंड थिंग, whenever the question is given to you, in case of probability, you have to write down the formula also. What is the formula? Number of favorable outcomes divided by total outcomes. So, okay, so this chapter gets over. Exercise 15.1, only one exercise is there in chapter number 15, and this gets over. So in my next video, that is video session 41, I would like to discuss some extra questions which are based on this chapter, chapter number 15, probability. Student, at last, the one more important note is that in my previous video, what I said to you, that whatever syllabus which you have done in the month of July, कि जो भी सिलेबस आपने जुलाई के मंथ में किया था वो आपका अगस्त के मंथ में पीटी टेस्ट में आएगा बेटा। पर अब ऐसा नहीं है, whatever syllabus you have done in your April and May month, जो भी आपने अप्रैल और मई मंथ में सिलेबस किया हुआ है, the entire syllabus will come in the month of अगस्त पेपर, ठीक है, वो अगस्त के पेपर में आपका आएगा। तो अब आपने चैप्टर नंबर कौन कौन से करने हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 6, 7 and 12, got it? 2, 3, 4, 6, 7, 12, and please watch the video very carefully and take care guys.